Good morning, English learners. Today is day 58th of year 2023. We are towards the month end of February. Okay, we completed January month, and today is day 27th of February month. Okay, so we are on day 58th. So tomorrow will be the February month end, that is 28th Feb. Here you simply since we have completed 2 months, you have completed 2 months. Okay, do measure your learnings. You should know how much you learned in 1 month, and then how much you learned in February month. So measuring your learning is very important. And just in case if you have lost your goal, if you are feeling low on energy, and if you feel that you have lost your way, here I have come up with this video to remind you why learning English is important for you guys. See, it does happen when you start practicing something, when you start learning something, there comes a time when you get bored of some doing the same thing repeatedly. There comes a time. Okay, it is a normal practice. Okay, with all of us, it does happen with all of us, with most of us, at some point of time or the other. But guys, trust me, never be hopeless, never be meaningless. This is what I always say. Okay, so it's the time. Since we have completed 2 months journey, we are towards the end of month February. Okay, so I really want you to measure your learnings till now, what you have learned. Okay, and then I wish to give you a reminder. See, when you started your journey with me, you were really energetic, you were really enthusiastic, but with the time we reduce our energy levels. Okay, you start feeling low in your learnings. Okay, you start losing your patience basically. So don't do that. Here I have come up with this video. It's a reminder to you why English learning is important for you, or why learning English is important for you. So let me start here, guys. See, I remember in the beginning you came up with these reasons. Okay, every one of you have your own reason. Okay, I wrote most of the common reasons why people learn English. So let me start reading these reasons. Point number one, I want to improve my personality. So I want to learn English because I want to improve my personality. Then number two, I want to learn it as I want to feel confident in public. मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे पब्लिक में कॉन्फिडेंट फील करना है. ये आपका रीज़न हो सकता है, राइट? देन नंबर थ्री, आई विश टू क्रैक माई इंटरव्यूज़. मुझे मेरे इंटरव्यूज़ क्रैक करने हैं. नंबर फोर, आई हैव आइल्स एग्जाम टू कम. मेरा आइल्स का एग्जाम आने वाला है. आइल्स का एग्जाम, guys, people sit for IELTS exam when they plan to go abroad. Okay, for better career, better prospects in their life. Okay, or maybe if they are shifting to abroad, any of the country, then they sit for IELTS exam. So for this exam they need English. The candidate should really be good at English. Okay, so then maybe this is your reason. Okay, then number five, I want to talk to teachers in English in my kids PTM. तो मुझे टीचर्स के साथ बात करना है. मेरे किड्स के स्कूल में, मेरे बच्चों के स्कूल में जब जाती हूँ तो पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग. मुझे उन टीचर से इंग्लिश में कॉन्वर्सेट करना है, बात करना है, कम्युनिकेट करना है. ओके, ये एक रीज़न आपका हो सकता है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो. देन पॉइंट नंबर सिक्स, आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट अब्रॉड. मुझे अब्रॉड शिफ्ट होना है, इसके लिए इंग्लिश सीखना है. देन पॉइंट नंबर सेवन, आई जस्ट वांट टू लर्न इट फॉर माई सेल्फ. मुझे खुद के लिए इंग्लिश सीखना है, बस होता है ना, मतलब आपका इंटरेस्ट है, आपको सीखना है. देन पॉइंट नंबर एट, आई वांट टू वर्क इन अ नाइस कॉर्पोरेट. ओके, मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब करना है, काम करना है. ओके, इंटरव्यू क्रैक करना है. ये आपका रीज़न हो सकता है. फिर इसके अलावा पॉइंट नंबर नाइन, आई विश टू टॉक टू माई किड्स इन इंग्लिश. मुझे मेरे बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना चाहती हूँ मैं, इसके लिए इंग्लिश सीखना है. पॉइंट नंबर टेन, आई मीट पीपल इन गार्डन, जिम, स्कूल, नेबर एक्सेट्रा. आई वॉन्ट टू फील कंफर्टेबल विद दैम. हो सकता है आप जिन लोगों के साथ रहते हो, आप जहाँ भी जाते हो, उनसे टकराते हो, तो वो लोग इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोलते हैं या फिर फ्रेजेस बोलते हैं या कुछ ना कुछ सेंटेंस इंग्लिश में आता है. आपको उनके साथ कंफर्टेबल होना है, इसके लिए आपको इंग्लिश सीखना है. तो आपको कोई भी रीज़न हो सकता है गाइस. ओके, इसके अलावा और भी रीजंस है, जिसमें से आपका एक रीज़न हो सकता है पॉइंट नंबर 11, किड्स विल हैव बेटर फ्यूचर. अगर बच्चे सीखते हैं इंग्लिश तो उनका फ्यूचर अच्छा होगा. पॉइंट नंबर 12, किड्स विल इम्प्रूव इन ऑल सब्जेक्ट्स. अगर बच्चों की इंग्लिश अच्छी है तो उनके दूसरे सब्जेक्ट इंप्रूव होते हैं. ईवीएस है, मैथमेटिक्स है, और आईटी है. तो ये सब सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं बच्चों के. तो अगर बच्चा इंग्लिश में अच्छा है तो दूसरे सब्जेक्ट में बच्चा मार नहीं खाता है गाइस.
और ये एक्सपीरियंस तो मेरा खुद का है मेरे बच्चों के साथ. They are really good in all the subjects just because they are good at English. Now, next point is number 12. Now, point number 13. With kids, parents to learn English. अगर आपके बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं तो पेरेंट्स भी सीख ही लेते हैं इंग्लिश, तो या तो आप खुद सीखो या बच्चों को सिखाओ. ये आपका रीज़न हो सकता है कि आपको बच्चों से सीखना है या खुद ही डायरेक्ट सीखना है और आपको बच्चों की हेल्प करनी है या आपको बच्चों से हेल्प लेना है. तो आपका कोई भी रीज़न हो सकता है. देन 14. इंग्लिश इम्प्रूव्स ओवरऑल पर्सनैलिटी. इंग्लिश से एक पूरी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है. नंबर 15. इंग्लिश मेक्स मी प्रेजेंटेबल. इंग्लिश मुझे प्रेजेंटेबल बनाती है. यू फील गुड फैक्टर आता है जब आपको इंग्लिश आती है. लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम नहीं होती है आपको. पॉइंट नंबर 16. इट विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंस. इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंग्लिश अगर आएगी मुझे तो. नंबर 17. इट विल एनहांस माई पर्सनैलिटी. मेरी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे अगर मेरे को इंग्लिश आ गई तो. देन नंबर 18. आई वॉन्ट टू मैच माई हस्बैंड्स वेव लेंथ. ओके, हो सकता है आपके हस्बैंड को इंग्लिश आती है, आपको नहीं आती है, तो आप चाहते हो कि आपको हस्बैंड के साथ अपनी वेव लेंथ मैच करनी है. ओके, आई वॉन्ट टू मैच माई हस्बैंड्स वेव लेंथ. 1 second guys. ओके, देन हो सकता है आपकी वाइफ को इंग्लिश आती है और आपको नहीं आती है, तो आप अपने वाइफ की वेवलेंथ से मैच करना चाहते हैं. कोई भी रीज़न हो सकता है. देन 19. आई विल बी एबल टू हेल्प माई किड्स इन देयर स्टडीज़. अगर मैंने इंग्लिश सीख ली या पेरेंट किसी भी एक पेरेंट ने इंग्लिश सीख ली तो बच्चों की हेल्प हो जाती है स्टडीज़ में, ईजी हो जाता है बच्चों को पढ़ाना. नंबर 20. आई विल बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश. बस इंग्लिश मुझे इसके लिए सीखनी है कि मैं इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो जाऊँ. इंग्लिश अगर मैं सुनूँ तो मुझे समझ आए, लिखूँ तो मुझे लिखना आ जावे. लाइक सबके अपने अपने रीजंस हैं गाइस. तो मैंने 20 रीजंस लिखे हैं जो कॉमन रीजंस हैं और जो मुझे सुनने मिलता है मेरे स्टूडेंट से. तो आप अपना रीजन लिखे, आप क्यों सीखना चाहते हो. और अभी तक आपने जो जर्नी की है मेरे साथ, 58 डे है आज, 58वां दिन है आज, तो आप ये देखिएगा आपने अभी तक क्या सीखा है. एंड आई वांट यू टू टाइटन योर शू लेसिस. दोबारा से अभी मार्च मंथ स्टार्ट होगा. आई वांट यू टू मेजर योर लर्निंग. जनवरी में कितना सीखा आपने, लिखो आप प्लीज उसको. फेब्रुवरी में कितना सीखा आप उसको लिखिएगा प्लीज गाइज. फिर अभी मार्च मंथ स्टार्ट हो रहा है, कल के लिए ब्रेक रहेगा, आप ब्रेक लीजिए एक दिन का. रिवाइंड कीजिए जो भी टॉपिक्स किए हैं, जो भी लर्निंग है उनको रिवाइंड कीजिए. आपको गो थ्रू करना है अभी तक जो जो किया है 2 मंथ्स में, जनवरी मंथ में, फेब्रुवरी मंथ में. ठीक है, फिर कल एक पोज होगा. पोज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप रिफ्रेश फील करो और फिर मार्च मंथ में फिर से फुल एनर्जी के साथ लर्निंग स्टार्ट करना है गाइस. ओके, ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बस आप खुद को रीजन दीजिए, खुद के रीजन ढूंढिए आपको इंग्लिश सीखना जरूरी क्यों है. जिस एनर्जी के साथ आप जनवरी मंथ में आपने स्टार्ट किया मेरे साथ, वही एनर्जी आपको अभी मार्च मंथ में फिर से स्टार्ट करनी है. तो उसके लिए रीजन ढूंढिए, आप लिखिएगा अपने रीजंस और उनको सामने रखिएगा. रीजंस को चाहिए तो आप उसको एक स्टिकी नोट बना के अपने सामने कहीं पर भी वॉल पे स्टिक कर दीजिए, आपकी टेबल पे स्टिक कर दीजिए, ताकि वो आपको रिमाइंडर मिलता रहे डेली बेसिस पे गाइस. ओके, रिमाइंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस करते रहिए, पेशेंस नहीं खोना है, होपलेस नहीं होना है. कीप लर्निंग. बोर होगा कभी कभी, बट यू हैव टू जस्ट लुक एट योर गोल. गोल को फॉलो करेंगे तो काम होगा. यू विल लर्न एंड डेफिनेटली फ्लुएंसी विल कम योर वे. Thank you guys very much for having patience, okay, for listening to me. I'm really thankful to you guys for following my channel, for liking my videos and for supporting me this much. Thank you. I'll see you with the next video. Thank you very much.